एक्चुअली कॉन्टूर इंटीग्रेशन ही वो कारण है जिसके लिए हम लोगों ने उतनी सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि मेन एप्लीकेशन जो है, जो हमें सीखना है, दैट इज कॉन्टूर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन, इसकी शुरुआत, इसकी अंडरस्टैंडिंग लॉरेंट सीरीज से ही हो जाती है ना। तो जहां पे कॉन्टूर सी एफ जेड डी जेड, दिस वॉज 2 pi I into sum of residues, 2 pi I sum of residues. So what is this C? C is some region and I am going anti-clockwise. If I will go clockwise, this will become minus 2 pi I. If I go clockwise, this will become minus 2 pi I. And what is this residue? Residue is corresponding to a pole. Suppose there are many poles for this function. Okay? Suppose there are many poles. Suppose there are 4 poles of this function. ये जो fz है, इसके मान लो 4 पोल हैं. 4 poles are there of this function. Some of them lie inside, some of them lie outside. Okay? So what will be the residue? Residue will not be calculated with the pole which is outside this contour. Residue will be only calculated for the poles which are inside the contour. So residue will be residue at Z0, residue at Z1, residue at 0, 1, residue at 0, 2. That's it. And this will be what I call sum of residue that will come to the right side of this integral. Other will be in contour integration C f z d z will be equal to 2 pi I sum of residues. Okay? ठीक है? So let us solve a problem which is like this. Contour integration C sin, अच्छा थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ. Suppose, what do you mean by this? Because ये थोड़ा abstract लगता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रियल इंटीग्रल्स की है ना. We understand the real integrals. So एक रियल इंटीग्रल लेके और फिर उसको समझाता हूँ जरा कि how both are related. Okay? So suppose a real integral is like this, 0 to 2 pi sine of x and dx. Suppose a real integral is like this. Okay? So I can write this real integral as imaginary of integral 0 to 2 pi e to the power ix and dx, like this. Okay? So ultimately, this is a definite integral. So I can write it as even here also without going like this. If I convert this integral in complex domain, so 0 to 2 pi will cover whole of the circle, and suppose I substitute z is equal to e to the power I theta, like this, e to the power I x or e to the power I theta. So in this substitution,
this will become contour integration C, and this I can write as sine of, I can convert it into complex domain because of this definition ना. So I will write it as, इसको क्या लिख लूंगा, e to the power ix, और 1 by z हो जाएगा e to the power minus ix. ठीक है, तो जब तुम पुट करोगे साइन एक्स की वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, तो तुम इसको पुट कर सकते हो e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2. ठीक है, एंड dx, हम्म हम्म तो dx क्या हो जाएगा, dz is equal to e to the power ix by I dx, which is dz is equal to, ये क्या है, z dx by I, so dx हो जाएगा I dz by z. ठीक है, तो ये वापस कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो मुझे आगे पढ़ाना है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रियल इंटीग्रल्स है, they are related, they can be related to complex integrals through Euler's equation. ठीक है ना, तो ये ये वाला इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले ही अपने दिमाग में ये रख लो कि हम बहुत सारे वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे बाद में कि जो हम रियल डोमेन में जिन इंटीग्रल्स को हम जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं जिनको, ठीक है ना, तो ऐसे इंटीग्रेशंस को हम लोग हैंडल कर पाएंगे. ये पहले से ही थोड़ा सा आपके दिमाग में मैंने डाल दिया. ठीक, अब जरा देखो, यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लेता हूँ, कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी साइन ऑफ z बाय 2z माइनस पाई dz मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2. सपोज ये एक इंटीग्रल, ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी यहां पे कोई कोफिशिएंट आ जाए तो सबसे पहला काम करना कि उसको कॉमन ले लेना विदाउट गिविंग एनी थॉट. तो ये हो जाएगा हाफ साइन z ओवर z माइनस पाई बाई 2 एंड dz. ठीक, नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो कॉन्टूर गिवन है इसको बना लिया जाए. दिस इज 2, दिस इज अ सर्कल of radius 2 and center 0. Mod of z is equal to 2 means center इसका 0 है और रेडियस 2 है. ठीक है ना, तो अब what is the pole, ध्यान से देखो, z माइनस पाई बाई 2 को 0 पुट कर दोगे तो पोल कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो हमको निकालना है z इज इक्वल टू पाई बाई 2 को पहले मार्क करो. ये z इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या ये हमारे सर्कल के अंदर है या बाहर है, पाई बाई 2 अंदर है. अगर ये बाहर होता तो इसका आंसर 0 हो जाता. तो मैं एक और ले लेता हूं, ये a है, ये b है, मॉड z इज इक्वल टू 1, इसके लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती, 0. अगर इसका रेडियस 1 होता
तो वो पॉइंट कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता। ठीक। और अगर ठीक उसी पे आ जाए तो हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं आधा अंदर है आधा बाहर है उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसको हम हाफ कर लेते हैं। ओके, तो अब रेसिड्यू निकालते हैं। तो बड़ा सिंपल है, रेसिड्यू एट सिंपल पोल है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 इंटू हाफ z-π/2 इंटू साइन z बाई z-π/2। हम्म, रेसिड्यू एट सिंपल पोल, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव हाफ। बिकॉज साइन π/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। साइन π/2 विल बिकम 1। तो व्हाट विल बी द आंसर, 2πi into 1/2। So answer will be pi iota। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर जेस्ट का क्वेश्चन। तो आप देखो, फटाफट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हर क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू निकालना। और ये ध्यान से देखना कि पॉइंट हमारे कॉन्टूर के अंदर है या बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं विच इज वेरी वेरी इजी, दैट इज contour integration C dz by z square minus 1। This is the contour integration and the contour is given like this, okay, and this is the contour, this is -1 and this is +1। जरा ट्राई करें। सो fz क्या है, 1/z² - 1 which is 1/z+1 z-1। ठीक है, सो बोथ पॉइंट्स आर इनसाइड। तो इसको थोड़ा कॉन्टूर को बना के देखो, तो ये कॉन्टूर ऐसा है। तो we can divide the contour into two parts. This part is going like this and it will again go like this. So this is clockwise and this part is anti-clockwise. Okay.
ठीक है, तो ये जो कंटूर C है, इस C को डिवाइड कर लो C1 और C2 में। सो कंटूर C dz by z square minus 1 is equal to contour C1 dz by z square minus 1 plus contour C2 dz by z square minus 1। ठीक, तो सबसे पहले C1 को हैंडल करते हैं, तो इट विल बी क्लॉकवाइज, इट विल बी minus 2 pi I into residue, and residue is at z is equal to minus 1. So it will be z plus 1 limit z tends to minus 1, z plus 1 into 1 upon z plus 1, z minus 1. And second one will be plus 2 pi I into limit z tends to 1, z minus 1, 1 upon z plus 1, z minus 1. ठीक है, so this will become pi I, and this will become pi I. So answer will be 2 pi I. 2 pi I is the value of this integration. ये क्रेजिक की प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से कराता आ रहा हूँ। ठीक है, और देखो कैसे होता है जब आप अच्छी बुक्स की प्रॉब्लम फॉलो करते हो ना। अब इसमें एक चीज तुमने सीखा, ये वाला अगर पहली पहली बार एग्जाम में देखो तो हो सकता है ना क्लिक करे, अगर पहले से नहीं पता है कि यार एक क्लॉकवाइज बना लें और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ये था, देखो कॉन्टूर इंटीग्रेशन C z e to the power I pi z by 2 upon z square minus 1 and dz। ठीक है, ये था तुम्हारा C, और ये जो कॉन्टूर था दिस इज कंटूर। तो अब इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर इस टाइप की एक चीज सिखा दी गई है तो आप ऐसी चीज कर पाओ। हाँ, तो लेट अस डू दिस। तो अगेन सेम थिंग, आप लोग अपने आप करो जरा। लेट मी कॉल दिस एज C1, this as C2. So what will happen? I will write this as C1 z e to the power I pi z by 2 by z plus 1 z minus 1 plus
C2 z e to the power I pi z by 2 upon z plus 1 z minus 1। ठीक है, अब ये वाले में जो पोल है वो z इज इक्वल टू 1 पे है। तो इसको लिखेंगे माइनस 2 पाई आई। अब देखो इस थोड़ा थोड़ा फिर मन में करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये चीज किस पे है, z माइनस 1 पे है, z इज इक्वल टू माइनस 1 पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना, z माइनस z0 एफ जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे -2। एंड यहाँ पे e टू द पावर z इज इक्वल टू -1, तो -i पाई/2। और ऐसे ही ये वाला +2 पाई आई इंटू 1/2 e टू द पावर i पाई/2। तो दिस विल बी पाई आई एंड e टू द पावर i पाई/2 माइनस e टू द पावर -i पाई/2 और by 2i into 2i। So this will become -2 pi into sine pi/2, which is equal to -2 pi। So you can see that's why we should cover more and more types of question, ताकि उस टाइप का आपका किया हुआ हो थोड़ा सा, तो एग्जाम में थोड़ा सा आसानी हो जाती है अप्रोच करने में। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। दिस क्लियर में? अब एक क्वेश्चन है, क्लोज इंटीग्रल c z स्क्वायर e टू द पावर z dz and c is a contour see the contour like this, like this, and we have to find out the value of this function. So this question is to remind you that जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब में क्लोज्ड कंटूर होना चाहिए। विदाउट क्लोज कंटूर के, if there is no closed contour, you can't apply your Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। ये बात तो पता है ना? तो सबसे पहला काम करेंगे, ये C गिवन था, तो सबसे पहला काम करूं कि मैं एक क्लोज्ड इंटीग्रल C डैश एफ जेड डी जेड के लिए
लिख सकता हूं 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू। हम्म। और वो क्लोज कंटूर सी डैश है, सी कंटूर और प्लस ये लाइन। हम्म। अब तो क्लोज हो गया। तो मैं सी डैश को लिख सकता हूं जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड डी जेड प्लस -1 से 1 सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्योंकि आप कहाँ मूव कर रहे हो, आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो z इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है। जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है, तुम्हें बताया है। ई टू द पावर जेड टेलर सीरीज है, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, नथिंग विल चेंज। सो दिस इज एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक फंक्शन में कोई पोल नहीं होता, और कोई पोल नहीं होता तो कोई रेसिड्यू भी नहीं होता, तो इसलिए 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो यूज कर रहे हैं। तो 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू करते। मान लो ये होता ई टू द पावर जेड बाई जेड। ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 एक पोल हो जाता, फिर हम उस पोल पे रेसिड्यू निकाल के देखते। ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो कितने ट्रिक से आ गई। जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। और ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। ये है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन -1 to 1। यू वी लगा दिया। तो क्या आ जाएगा ये? करके बताओ। 1 अप्लाई करेंगे तो ई -2e +2e। तो ई माइनस में आ गया, और -1 अप्लाई करेंगे तो 5 ना। सी वॉज एन ओपन कंटूर। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंटूर इंटीग्रेशन सी tan z अपॉन z स्क्वायर -1 dz and c mod of z is equal to 1.5। This is the question।
What is that? Fz is tan z upon z square minus 1, which is sin z by cos z, z square minus 1. For pole z, cos of z is 0, z square minus 1 is 0, here z is 1 and minus 1, and here z is pi by 2 minus pi by 2, 3 pi by 2 minus 3 pi by 2, like that. So now we have been given a circle. Let us make the circle. This is 1.5. This is minus 1.5. This is 1.5 iota. This is minus 1.5 iota. So 1 and minus 1 are inside. And what is pi by 2? 1.57. Huh? So it is just outside. Pi by 2. And 3 pi by 2 will be out. तो सिर्फ और सिर्फ हमें दो पोल कंसीडर करने, एक है 1 और एक है -1. तो रेसिड्यू एट 1, अगर 1 में देखें तो tan 1 अपॉन 2 एट z इज इक्वल टू 1, और रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1. -1 के लिए क्या होगा? tan of -1 by -2, which will become tan 1 by 2. So answer will be 2 pi I sum of residue, which will be tan 1. Sorry. तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जो पोल है या सिंगुलरिटी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही नहीं है, कई बार वो न्यूमरेटर में भी छुपी हुई है, जैसे tan में, क्योंकि tan sin बाई cos बन जाता है ना, फिर cos की वजह से सिंगुलरिटी आ जाती है जो कि डिनोमिनेटर में, जब वो जीरो होगा तो फंक्शन सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है. तो एक वही क्वेश्चन फिर से करता हूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. वो क्वेश्चन था कॉन्टूर इंटीग्रेशन C e to the power 4z minus 1 cos hyperbolic z minus 2 sin hyperbolic z. तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन C 1 by 2 pi I
e to the power 4z minus 1 upon cos hyperbolic z minus 2 sin hyperbolic z dz and mod of z is equal to 1. ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर होगा 1/2 पाई इंटू 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू। तो इसका मतलब हमें जस्ट क्या निकालना है? सम ऑफ रेसिड्यू। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? सम ऑफ रेसिड्यू फॉर दिस फंक्शन। ठीक है ना? तो कल भी हम लोगों ने किया था ना ऐसा। क्या करेंगे? कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z माइनस 2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 0। हम्म तो इसका हम लोगों ने कल पोल निकाला था, याद आ रहा है? कि tan ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2। और फिर इससे z0 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1/2 ln3 ना, ये आ गई थी। और रेसिड्यू -8/√3। तो यही आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी करना है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं सीधा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी लॉग ऑफ z+1 सॉरी अपॉन z² + 1। Suppose this is your function and mod of z minus I is equal to 1.4। ठीक है? This is the contour। This time the contour is little different। तो जरा पहले contour ड्रॉ करो।
So this is suppose the argand plane and this is iota, right? And radius is 1.4. So this radius is 1 unit. This is 1.4. This is your contour. और तुम्हारा ये जो है ये कितना है? 1.4. And what is this? 1 unit. So what is this? This is root of 1.4 square minus 1 square. कितना हुआ लगभग? 14 का कितना हो जाता है? 196. 14 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 0.96. थोड़ा सा बड़ा आएगा 1 से. अरे मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट शो करने के लिए कि ये कॉन्टूर कैसा है. अदरवाइज तुम्हें कॉन्टूर बनाने की भी जरूरत नहीं, वो भी अभी बता दे रहा हूँ. यू डोंट नीड टू ड्रॉ कंटूर. अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना. एफ जेड इज ln ऑफ z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 1. तो तुम्हारा जो पोल है दैट इज एट 1 एंड माइनस 1. तो तुम्हारा पोल इनसाइड है आउटसाइड है? ओहो. प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा. So your iota is inside and minus iota is somewhere here. और मान लो कि मैं यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 1 दे देता क्वेश्चन में, तो तुम्हारा पोल हो जाता +1 और -1. तो तुम कैसे देखोगे कि अंदर है कॉन्टूर के या बाहर है? तो देखो ये बड़ा सिंपल है. तुम्हारे पास एक इक्वेशन है मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू 1.4. हम्म. अब अगर कोई पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा तो जब उस पॉइंट से डिस्टेंस लोगे तो वो इससे छोटी आएगी. जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो जब इस पॉइंट को सेंटर से देखोगे तो ये रेडियस से छोटा आना चाहिए ना. और अगर तुमने ये पॉइंट ले लिया तो ये रेडियस से बड़ा आ जाएगा, तो वो बाहर चला जाएगा. तो जैसे सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ 1 1 से चेक करना चाहता हूँ कि वो इस कॉन्टूर के अंदर है या बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 माइनस आयोटा लिख लूंगा. इट शुड बी लेस देन 1.4 if it is inside. So this is under root 2 less than 1.4. This is 1.414 is less than 1.4 which is not correct. तो इसका मतलब 1 जो है वो करीब करीब बाहर निकल जाएगा और -1 भी बाहर निकल जाएगा. रूट 0.96 देखो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.96. 0.979 which is less than 1. ठीक है ना. ये बहुत अच्छा मेथड है. किसी भी केस में तुम्हें कंटूर बनाने की जरूरत नहीं है. तुम उस पॉइंट को देख लो, वो पॉइंट अगर रेडियस से अरे वो तो ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं. ठीक है.
तो इसी क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि अगर अगर मेरा सवाल होता कॉन्टूर इंटीग्रेशन ln z प्लस वन बाय जेड स्क्वायर माइनस वन, तो मेरा आंसर 0 आ जाता, क्योंकि इस रीजन में जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता, एनालिटिक हो जाता, तो हमारा आंसर 0 आ जाता। क्लियर है? तो अगर हम ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन सीख जाते हैं तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, रियल इंटीग्रेशंस को के कैलकुलेशन के लिए। सो नाउ अब हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीखेंगे रियल इंटीग्रेशन में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है तो आप सीधा 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू करोगे, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। बट अगर रियल इंटीग्रेशन है तो पहले उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू लगा सकते हैं ना। तो अब हम पढ़ते हैं रियल इंटीग्रेशन। लेट अस अप्लाई रियल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मान लो इसमें हमें एक्चुअली 3 टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ने हैं, लेकिन अभी मैं ब्रांच पॉइंट ब्रांच कट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अभी मेनली 2 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आपके टाइप का है कि नहीं है, तभी तो आप एग्जाम में तुरंत देख पाओगे ना। तो पहला टाइप है जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई है, या -पाई से पाई है और अंदर इवन फंक्शन है, तो उसको तुम हाफ, अगर -पाई से पाई है तो उसको आप 0 से 2 पाई लिख सकते हो, अगर अंदर इवन फंक्शन है। अगर ऑड है तब तो वैसे ही आंसर 0 है, ठीक है ना। तो 0 to 2 पाई वाली लिमिट वाले क्वेश्चन, और दूसरा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, या अगर इवन फंक्शन है तो 0 से इन्फिनिटी, इफ यू हैव इवन फंक्शन, ठीक है। और भी कुछ इंटेलिजेंट इंटीग्रेशंस ट्राई करेंगे, 0 to इन्फिनिटी वाले ट्राई करेंगे करने को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 0 to 2 पाई वाला देखते हैं, उसके बाद हम लोग 0 to इन्फिनिटी वाला देखेंगे, या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी वाला देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो बहुत ही इंटेलिजेंटली क्या किया गया कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो अगर हमें कोई इंटीग्रेशन दिया जाए 0 to 2 पाई विद सम फंक्शन ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा, मान लो इस टाइप का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, 0 to 2 पाई सम फंक्शन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जैसे आप क्लास 12th में पढ़ते थे कि आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशंस को आसान बना लेते थे, तो ये वही प्रोसीजर है। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका क्लास 12th टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एक नया सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो आपको पता है कि z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ये तो हमें पता ही है, रिलेशन बिटवीन complex and real quantities sin theta and cos theta. If I put r is equal to 1, then what will happen? क्योंकि ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है, मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो z will become e to the power I theta. This is not a universal definition. This is definition of a unit circle. आपने r is equal to 1 मतलब unit circle centered at origin. तो 1 by z क्या हो जाएगा? तो sin थीटा क्या हो जाएगा? तो cos थीटा, this is not a universal definition. This is when you have a unit circle. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम थीटा में 0 से 2 पाई जा रहे थे और हमारा रेडियस 1 हो गया, तो ये एक सर्कल बन गया विच इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया एक कॉन्टूर इंटीग्रेशन में fz dz, where c is nothing but a unit circle। तो अगर हम इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो हम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और आंसर उसका आ जाएगा। अब इस चीज को बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाता हूं जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। मान लो हम इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई करते हैं और साइन ऑफ थीटा डी थीटा करते हैं। इसका आंसर हमें पहले से पता है कि 0 होगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं एक कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी में। साइन थीटा इज 1/2 आयोटा z minus 1 by z and d theta is dz by iz। कैसे? जब z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा है तो dz बाई डी थीटा इज 1 बाई i e टू द पावर i थीटा। तो d थीटा इज dz बाय i z। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया 1/2 आयोटा, ये आयोटा आयोटा -1/2। हम्म और कॉन्टूर इंटीग्रेशन 1 -1 बाई जेड स्क्वायर और डी जेड। तो एफ जेड क्या है? 1 -1 बाई जेड स्क्वायर। जेड नॉट इज इक्वल टू 0 इज अ पोल and b1 is 0, so this answer is 0। जो कि आपको पहले से भी पता था। बट दिस एग्जाम्पल इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप यहां से सीखते हो कि कैसे कॉन्टूर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है।
यहां से आप सीख रहे हो। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, ये तो मान लो आपको शो करने के लिए। अब एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ले कि जो वैसे सॉल्व करना मुश्किल है बट कॉन्टूर इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन a - b cos थीटा। ठीक है। a इज ग्रेटर देन b। गिवन। तो इसको पहला स्टेप है कॉन्टूर इंटीग्रेशन c dz बाय iz a - b/2 z+1/z which is dz by iz 2az minus b z square minus b अपॉन 2z। देखो जरा एलसीएम लेके। Z and Z will cancel. It will become 2 by I contour integration C dz by minus B will also be taken common. Hmm? So it will become Z square minus 2az plus B. देखना जरा सही है। minus 2a by B and plus 1। और इसको z स्क्वायर माइनस 2a by b z
प्लस 1 को z माइनस अल्फा z माइनस बीटा के फॉर्म में लिखना है ताकि ये सिंपल हो जाए। तो क्या हो गए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So 2 this is gone, so it will be a by b plus minus 1 by b root of a square minus b square। तो अल्फा इज a plus root a square minus b square by b, and beta is a minus root a square minus b square by b। तो जो a से बड़ा होगा, जो 1 से बड़ा होगा, वो बाहर चला जाएगा। तो देखो a बड़ा है b से, तो ये a बाई बी प्लस समथिंग है, तो ये बाहर चला जाएगा, और ये 1 से छोटा है तो ये अंदर आ जाएगा। तो बीटा इज इनसाइड एंड अल्फा इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड। तो सिंपल पोल है, तो लेट मी राइट इट, -2 बाई आयोटा बी कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। नाउ बीटा इज इनसाइड, alpha is outside, so it will become -2 by iota b into 2 pi I into residue, which is z minus beta is gone, so which is 1 by beta minus alpha। और बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस करो, -2 टाइम्स रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b, करेक्ट है। So this will be iota iota gone, -2 into 2 pi into -2 1 upon -2 root a square minus b square by b, and by b and b cancel, 2 and 2 cancel, minus and minus cancel, 2 pi by root of a square minus b square। यार उसमें तो नेचुरल है ना, नेचुरल वे में ही तो कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, ये लगाया, तो धीरे धीरे करोगे तो आएगा, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि अगर 0 to 2 पाई है और डी थीटा बाई √2 माइनस कॉस थीटा,
और वो भी यहाँ 0 to पाई लिखा हुआ था। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना था, पहले इसको हाफ 0 to 2 पाई, क्योंकि इवन फंक्शन है, और उसके बाद हाफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1 विच इज, बस हो गया एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने पहले कर रखी है। ये क्लियर है? तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो, जिसमें फंक्शन ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा हो। एक क्वेश्चन दूं आप लोग को करने के लिए? इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 माइनस 4 कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से लिखें, तो इट विल बिकम इंटीग्रल 0 to 2 पाई
1 minus cos 2 theta by 2, 5 minus 4 cos theta and d theta. This one will become half 0 to 2 pi d theta by 5 minus 4 cos theta minus half integral 0 to 2 pi cos of 2 theta by 5 minus 4 cos theta d theta. This one we already know. So this will become half into 2 pi root of 5 square minus 4 square. ये इसका काम खत्म हो गया. इसको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा है ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए. बोलो. तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई टू थीटा. तो रियल ऑफ z स्क्वायर क्या होगा, cos 2 थीटा. तो मैं इसको इस वाले को ऐसे लिख लूंगा, माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल c रियल ऑफ z स्क्वायर अपॉन दिस वी हैव टू मैनेज. ठीक है. ये क्या बन जाएगा, so this will be a minus half real of closed integral c. This will become 1 by iota closed integral c z and 5z minus 2z square minus 2 upon z will give you z square. अलजेब्रा है. तो -2 और कॉमन आएगा तो इट विल बिकम 1 by 4 रियल ऑफ 1 by i कॉन्ट्रीब्यूशन c z square minus 5 by 2z plus 1. So what will be the roots? Z square minus 5 by 2z plus 1 is equal to z minus alpha, z minus beta. What will be the root? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So it will be 5 by 4 plus minus 3 by 4. So 2 comma 1 by 2. So 1 root is 2, 1 is 1 by 2. So 2 will go out of our contour because our contour is a unit circle. What is our contour? Contour is a unit circle. So it will go out and half will stay inside. तो क्या हो जाएगा, 1 by 4 real of
1/i into 2 pi i into half square upon half minus 2. This will be the answer. So it will be 1/4 into 2 pi into 1/4 into 2 to 4 minus 3/2. So 2, 2 gone. Hmm? Minus pi/3. ये 4 भी तो बच रहा है. Hmm? ये साइन ये कितना आएगा? -5/12. तो अब हमारे पास क्या था? pi/3 एंड प्लस. ठीक है. तो ये मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करनी है. ये जब आप कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो जरूर डेवलप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो 0 to 2 पाई वाले में कुछ क्वेश्चंस और लगाना होगा ताकि थोड़ा कमांड आ जाए. तो इसको इरेज कर रहा हूं. ओके. अब जो दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो क्या है? तो अब हम लोग रियल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके पास कोई इंटीग्रल होगा जिसका मैंने आपको फॉर्म बता रखा है. वो फॉर्म कैसा है? -∞ to +∞ f(x) dx. इस फॉर्म के इंटीग्रेशन होंगे. ठीक है. ऑब्वियसली f(x) या तो इवन होगा, नहीं तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, क्योंकि अगर ये ऑड हुआ फिर तो आंसर 0 ही आ जाना है. ठीक है. इसको कैसे हैंडल करें? अब देखो कैसे कैसे उन लोगों ने दिमाग लगाया है.
तुम कर रहे हो एक कंटूर इंटीग्रेशन, तो पहले उस कंटूर को देखा कैसे 0 से 2 पाई में लेके चले गए। अब तुम कर रहे हो कंटूर इंटीग्रेशन, लेकिन उस कंटूर को क्या बना देंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो देखो इसके लिए कॉशी, आइलर, इन्हीं सब लोगों ने काम किया है, रीमन। ठीक है, तो हमको ये जानने की कोशिश नहीं करनी है कि यार ये सोचेंगे कैसे। जैसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये हम कैसे सोचेंगे कि ये कंटूर, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम नहीं सोच पाओगे। तुम जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज सोच ही लो। कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं, इतनी नोवल हैं, इतनी मतलब स्टैंडर्ड है कि हमारे दिमाग में क्लिक करे, जरूरी थोड़ा तो हम कौशी ही हो जाएंगे ना। हम तो इतना कर लें कि भाई इन्होंने ये समझाया है वो समझ के सवाल लगा लें। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यही मोटिव है। तो इस टाइप का एक सेमी कंटूर कंसीडर किया, दिस इज कंटूर सी। सेमी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो रियल नंबर्स है ना, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो ताकि बाद में हम उनको ले सकें, इसलिए ये कंटूर कंसीडर किया। ये आर रेडियस का कंटूर है, सेमी कंटूर। ठीक है, बट ये क्लोज्ड है, इट इज अ क्लोज कंटूर। अब अगर मैं यहां पे कोई अपने मन से कोई फंक्शन एफ जेड लिख लूं, कोई भी फंक्शन एफ जेड, तो मैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू लिख सकता हूं। हम्म, और अगर मैं इस कंटूर को इस कंटूर में बदल लूं, तो ये टोटल कंटूर सी है, बट ये ऊपर वाला आधा वाला सी आर है। हम्म, तो हो जाएगा क्लोज्ड कंटूर सी आर एफ जेड डी जेड प्लस, ये तो इतना हो गया, प्लस माइनस आर टू आर। किस एक्सिस पे चलोगे अब, एक्स एक्सिस पे, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। तो एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब कुछ कुछ नजर आ रहा है हमारे इंटीग्रल जैसा है। यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, बस यहाँ पे आर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिमिट आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कर देना है। यानी ये जो आर है इसको इनफाइनाइट पे, तो ऊपर कितना बड़ा सर्कल बनेगा, पूरा अपर प्लेन को कवर कर लेगा। तो जैसे ही इसको बड़ा बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, टोटल अपर प्लेन विल बी कवर्ड, पूरा अपर प्लेन कवर्ड हो जाना है। तो ये पहले वाले इंटीग्रल में हमें पुट करना पड़ेगा लिमिट आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ये एफ जेड जो है वो z इज इक्वल टू सम आर ई टू द पावर आई थीटा होगा। तो जब इस फंक्शन में पुट करोगे z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा और r टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करोगे, तो ज्यादातर ये जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगा तो इंटीग्रेबल नहीं है, और इसी को हम जॉर्डन्स लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन ऐसा होगा कि जब तुम z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई फाइव रखोगे, आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करोगे, तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा लिमिट रखने पे? अब 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू करना है, 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू करना है विद अ कॉन्टूर दिस, क्योंकि इधर लिमिट लग गई है ना, तो विद दिस कॉन्टूर करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू। और फॉर द पोल्स lying on the lying above the real axis and pi sum of residue for the pole on the real axis. जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन्स लेमा हमको नहीं देखना है, हम बता दिया 0 है। तो अगर पोल्स यहां है तो 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू, और अगर यहां है तो पाई सम ऑफ रेसिड्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ऑन द कॉन्टूर कंट्रीब्यूशन को आधा ले लेंगे, उसके पीछे मैथमेटिक्स है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स। ये इतना सिंपल दिखता है कि क्लास 12th के बच्चे को भी दे सकते हो, परेशान हो जाएगा बेचारा। वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा लगा के कॉपी भर दे। एक्चुअली ये बड़ा अजीब सा इंटीग्रल है कि जो लोग कंट्रो इंटीग्रेशन नहीं जानते उनको लगेगा कि किसी तरह से तो हम कर ही देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इधर उधर करके, बट ये होता नहीं है। और ये है क्या? ये है इंटीग्रेशन इस ग्राफ का ना, साइन एक्स बाई एक्स, ये एरिया निकाल रहे हो एक्चुअली। कुछ एरिया छोटे छोटे पॉजिटिव हैं, कुछ छोटे छोटे नेगेटिव हैं, बट चूंकि ये बड़ा वाला पहले ही पॉजिटिव हो गया तो इसलिए फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसको देखते हुए सबसे पहला स्टेप है एफ जेड लिखना। तो ध्यान रखो, जब भी साइन या कॉस आएगा हम उसको एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड ही लिखेंगे, और इसको सीधा जेड। और आंसर का अब हमें कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा? इमेजिनरी, क्योंकि आपने ई टू द पावर आई जेड ले लिया। अब पोल ढूंढो, जेड इज इक्वल टू 0, सिंपल पोल है, तो लिमिट z tending towards 0, z e to the power I z by z which is 1। तो इसका आंसर क्या होगा? इमेजिनरी ऑफ, नो, पाई आई इंटू 1 विच इज इक्वल टू पाई। कितनी अजीब बात है ना कि इस कर्व का एरिया पाई। पाई कहाँ से पहुंच जाता है? कहाँ आप एक एरिया निकाल रहे हो, पाई आ गया। बड़ा जादुई टाइप का लगता है ना, हर जगह कुछ कुछ आप कर रहे हो, पाई अपने आप अपीयर हो जाता है। तो इस ग्राफ का एरिया क्या है? एरिया अंडर द कर्व पाई।
अब जरा एक और करो, साइन 2x बाय एक्स क्यूब, लिमिट सेम है, साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। हम्म। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन ऑफ 2x ओवर एक्स क्यूब dx, इसके लिए fz लिखा, e टू द पावर i 2z बाई जेड क्यूब, इसको ओपन कर लिया, 1 प्लस आई 2z प्लस आई 2z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 बाई जेड क्यूब। तो जब b1 देखा तो b1 कितना आ गया, हम्म, b1 देखो, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, होल क्या है, z इज इक्वल टू 0। तो 1 बाई, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे 4, 4 बाई 2 इज 2, तो इट इज -2। तो व्हाट इज द आंसर, पाई आई इमेजिनरी ऑफ, पाई आई इंटू रेसिड्यू, तो विच इज -2 पाई। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि निगेटिव में बड़ा हो गया होगा साइन 2x बाई एक्स क्यूब का, इसलिए नेगेटिव ओवरऑल आ जा रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जिसका मैंने पहले ही आपको बेसिक्स बता दिया है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक, तो आपको याद होगा इसका एफ जेड क्या होगा, 1 अपॉन होल, पहले ही निकलवा रखा है, z टू द पावर 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 2n प्लस 1 पाई। तो z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो z0, z1, z2, z3, तो z0
Z1 कितना हुआ, Z2 एंड Z3। ठीक, और ये होगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये 3π/4, 1 2 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, थर्ड -1/√2 माइनस 1/√2। ठीक, यही तो कह रहा हूँ कि पहले करा चुका हूँ, इसीलिए करा चुका हूँ क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो अब इसमें से देखना है कि कॉन्टूर में हमारे कौन कौन सा आएगा, तो जिसका आयोटा पॉजिटिव होगा ये दोनों, क्योंकि हमारा कॉन्टूर कैसा है, अपर प्लेन को कवर कर रहा है। जैसे ही आयोटा नेगेटिव हुआ वो कहीं नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे कॉन्टूर के अंदर नहीं आते, Z0 और Z1 आते हैं। तो हम रेसिड्यू लिखेंगे which will become 1/4z³, 5z by psi dash z। ठीक है, किसमें क्या लगाना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। तो ये हो जाएगा 1/4, पहला है Z0 और दूसरा Z1, इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो Z0 टू द पावर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/π e⁻³ -3π/4 प्लस e⁻³ -9π/4 आयोटा। ठीक, तो ये होगा 1/4 cos 3π/4 माइनस आई साइन 3π/4 प्लस cos 9π/4 माइनस आई साइन 9π/4। ठीक, अब cos 3π/4, 1 2 सेकेंड क्वाड्रेंट, so this will be 1/4 minus 1/√2, ये -i/√2, ये प्लस 1/√2 और ये -1/√2। ठीक, तो रेसिड्यू हो जाएंगे, सम ऑफ रेसिड्यू 1/4 -2 आयोटा बाई √2। ठीक, और इंटीग्रल 2πi इंटू 1/4 इंटू -2i/√2, i माइनस 2 to 4 पाई बाई √2। ये नेट में भी आया, TFR में भी आया और जेस्ट में भी आया। हम्म, तो वैसे तो तुम कुछ भी याद कर लो, ऐसे 50 हर क्वेश्चन में बन जाएगा। पेपर में इतना ही सॉल्व करना पड़ता है। मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ, जो तुम π/n वाला कर रहे हो, यहाँ पे 2 पुट कर दिया TFR में, खत्म हो गया तुम्हारा π/n। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, x⁴ प्लस 2, तो कैसे होगा। हाँ, ओके, बट आई थिंक कि इतने सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक।
ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर फॉर्मूलों का बहुत बोझ होगा इस एग्जाम में, तो मैथमेटिकल में भी अगर याद करने लगोगे तो फिर तो, क्योंकि ये तुम्हें टफ क्यों लग रहा है बताओ? पेपर में इतना करना पड़ता है। अगर तुम ये सोचो कि इस तरीके की कैलकुलेशन किए बगैर पेपर हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता। आपको इस तरीके की कैलकुलेशन, इससे भी बहुत ज्यादा यार, ये तो बहुत थोड़ा है, क्योंकि आपको ये निकालना पहले ही सिखा दिया है। यहाँ पे पावर 3 होते ही वो आइलर्स इक्वेशन से बदल गया। मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे अभी मैं मान लो 4 की जगह n रख दूं और सॉल्व कर लूं, तो वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। बट हम कितने फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन। हम्म। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करना। तो मैंने आपको इसलिए होमवर्क दिया था, याद करो। तो उसमें से कुछ ही रूट्स होंगे जो अंदर आएंगे, बाकी सारे जिसमें माइनस आयोटा आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही। एक्चुअली इधर बता देने दे देखो। हम्म। ये क्वांटम मैकेनिक्स में जब करते करते Schrödinger सॉल्व करते करते इसके आगे का काम कौन सॉल्व करता है? और ये नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व हो सकता विदाउट गोइंग इनटू contour integration. So let us solve. तो देखो एफ जेड क्या होगा, बस यही देखना है। एक्स जेड ई टू द पावर आई जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। और आंसर का कौन सा पार्ट लेना है?
इमेजिनरी, क्योंकि आपने साइन की जगह e टू द पावर आई जेड लिख लिया। बस क्वेश्चन खत्म इतने में। ठीक है, एंड दिस सिग्मा इज पॉजिटिव, दिस इज अ पैरामीटर एसोसिएटेड विथ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे तो ये बन जाएगा सिग्मा पॉजिटिव है। इससे आप क्या समझते हो? और स्कैटरिंग पैरामीटर है तो कोई रियल क्वांटिटी ही होगी। z माइनस सिग्मा, z प्लस सिग्मा। देखो एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करूं और वो थोड़ी लंबी है, तो ये अपना दिमाग मत लगाना कि तुम उससे बच सकते हो, क्योंकि वो बार बार बताने का समय नहीं है। इसका मतलब उतना आपको स्ट्रेच करना है अपने आप को। वो यहां नहीं तो कहीं और काम आएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और काम आएगा। ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशन हैं जिनमें लगभग लगभग 10 लाइनें या 6 लाइनें यूज हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है मेंटली। ओके, तो इस बात पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि इतना करना है कि नहीं करना है, कि कहीं एक्चुअली तो तब होता है जब कभी हम 2009 में पढ़ा रहे होते हैं। अब तो 2022 चल रहा है, तो इस बात की चर्चा अब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जितना हो गया इतना करना ही करना है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब कितना सिंपल है, कौन सा रूट अंदर लाई करेगा बताओ, कौन सा पोल? दोनों यार रियल एक्सिस पे है। सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये कंटूर है, ये जीरो है, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा है। ठीक है, तो अब बताओ जरा, रेसिड्यू क्या होगा? सिग्मा ई टू द पावर आई सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा फॉर जेड इज इक्वल टू सिग्मा, और रेसिड्यू होगा माइनस सिग्मा ई टू द पावर माइनस आई सिग्मा अपॉन -2 सिग्मा फॉर जेड इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, which will be answer is imaginary of 2 pi I into sum of residue सही है। तुम अच्छा, ये तो पहले ही है ना, ये तो यही प्रेजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कॉस हो गया, तो इमेजिनरी लेना है। टू कहीं एक्स्ट्रा नहीं हो रहा? हम्म। हम्म। ओह, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। भाई मैंने कहा एक्स्ट्रा कहाँ से हो रहा है। भाई ये गलती मत करना भाई तुम लोग, ये बहुत ध्यान रखना, पहले ही देख लेना कि कहाँ पे। नहीं तो क्या होता है, जब तुम रेसिड्यू में बिजी हो जाते हो, जैसे ही निकलता है वैसे 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये कितना हो जाएगा? पाई कॉस सिग्मा। तो अब सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये बीच में आई, फट से आप इधर गए, खत्म।